Hello, this is the lecture number 4 for the chapter Relation Function, class 11th Mathematics. In the last lecture, we have done up to relation, and this exercise, that is 2.3, based on the function, based on functions. Now we discussed in the basics of this chapter that what is a function. Now functions are only those relations in which every element has one and only one image in set B. Then it will be a function, otherwise it will not be a function. So in exercise 2.3, first part, see it very carefully. The domain range are given 2, 1, 5, 1, 8, 1, 11, 1, 14, 1, 17, 1. Means this is 1. That is all the elements have वन एंड ओनली वन इमेज. हर एक एलिमेंट की, ये हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं, हर एक एलिमेंट की सेम इमेज हो सकती है. तो दिस इज द फंक्शन बिकॉज एवरी डोमेन हैज वन एंड ओनली वन इमेज. हर एक एलिमेंट की वन एंड ओनली वन इमेज है. सिमिलरली इन सेकेंड पार्ट, द डोमेन रेंज इज गिवन सेट 2, 1, 4, 2, 6, 3, 8, 4, 10, 5, 12, 6, 14, 7. Yes, this is a function because again the same reason, each and every element of this relation has one and only one image. हर एक की अपनी एक distinct image है, unique image है. So therefore this is a function and the domain of this will be 2, 4, 6, 8, 10, 12 and 14. Range it, you know it, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. This is the domain and range of this function. Now the third part of this question, the relation given as 1, 3, 1, 5, 2, 5. Now see it carefully. This is not a function because the element 1 has two images, 3, 5. So this is not the function because you have to give the reason, because 1 have more than one image. एक से ज़्यादा इसकी image है. एक से ज़्यादा इसकी image है. Now some difficult or some theoretical part questions are now after this. Domain or range you have to find of the functions, domain and range. Now what are the domain? Domain are those values of the x when it is written in terms of x, which will give a real value of the function. Real means if you say in the simple language, there should not be 0 in the denominator and negative in the square roots. So fx is equal to minus mod x. तो what is the domain? Domain यहाँ पे देखिए, you cannot get 0 in the denominator in any case, क्योंकि इसमें denominator में कुछ है ही नहीं, and we don't have the square root also. So it means यहाँ पर आप कुछ भी value रख सकते हैं. Any means you can put here any real value for x. कोई भी real number लिख सकते हैं. तो क्या लिखना है यहाँ पर आपको? Here mod x is uniquely defined for the non-negative real numbers for x belongs to R. कोई भी नॉन नेगेटिव रियल नंबर यहाँ पर आप लिख सकते हैं, कोई भी वैल्यू आप यहाँ पर लिख सकते हैं. सो देयरफॉर एफ एक्स इक्वल टू माइनस मॉड एक्स इज यूनिकली डिटरमाइंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर. कुछ भी वैल्यू यहाँ पर एक्स की रख दीजिए, यू विल गेट ऑलवेज अ रियल नंबर. सो व्हाट इज द डोमेन ऑफ एफ? इसको ऐसे लिख लीजिए या ऐसे लिख लेते हैं, कैपिटल डी स्मॉल एफ, लाइक दिस. डोमेन ऑफ एफ इज एनी रियल नंबर. नाउ see it very carefully. Range you have to find. Now what is a range? Range is those value of the function which is obtained by putting the value of x here. तो जो भी यहाँ पर आप x की वैल्यू रखेंगे, उसका जो आंसर आएगा that will be the range. Now because the value of mod x is always greater than equal to 0 और x आपका रियल नंबर है, तो माइनस मॉड x क्या होगा? लेस देन इक्वल टू 0 होगा. जब जैसे ये पॉजिटिव नंबर है, माइनस का साइन यहाँ लगा देंगे तो नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी इंक्लूडिंग 0. और कोई भी अगर x की वैल्यू रियल है तो रेंज क्या हो गया इसका? लेस एन इक्वल टू 0. द वैल्यू ऑफ दिस इज लेस एन इक्वल टू 0. 0 से माइनस इन्फिनिटी तक, 0 से माइनस इन्फिनिटी तक इसका रेंज हो गया. तो थोड़ा सा इसको कई बार आपको करना पड़ेगा, देन यू विल हैव अ गुड हैंड ऑन इट. नाउ सेकंड पार्ट, अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर. अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, यू हैव टू फाइंड द डोमेन. नाउ फॉर द डोमेन यू शुड हैव द पॉजिटिव स्क्वायर रूट. ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए क्योंकि स्क्वायर रूट में नेगेटिव नहीं आना चाहिए. So for the domain this should be greater than equal to 0, or we can say इधर right hand side में 9 square is greater than equal to 9 is greater than equal to x square. और हम कह सकते हैं जब
एक्स की वैल्यू लेस एन इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज लेस एन इक्वल टू 9, द वैल्यू ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू -3 to 3, पता ही है आपको, -3 से 3 तक वैल्यू रखेंगे जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। सो व्हाट इज द डोमेन है, -3 से 3, -3 से 3 तो डोमेन इसका ये हो गया। ये आपका स्क्वायर रूट में पॉजिटिव होना चाहिए, तो मैंने इसको ग्रेटर इक्वल टू 0 रख के आई फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर द इनइक्वालिटीज। यू नो हाउ टू सॉल्व द इनइक्वालिटीज। तो -3 से 3। नाउ सी इट वेरी केयरफुली, व्हेन यू हैव टू फाइंड द रेंज यू लेट द फंक्शन बी इक्वल टू वाई, वाई के इक्वल रख करके यहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए। यू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स यहाँ पे कितना आ रहा है, ये आ रहा है। अब एक्स स्क्वायर आपका हमेशा पॉजिटिव होगा, ये तो कभी नेगेटिव होने का नहीं, तो एक तो आपकी एक्स स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो मतलब ये आंसर कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। नाउ दिस ऑल्सो इज ग्रेटर इक्वल टू 0, आप इससे ग्रेटर इक्वल टू 0 रखिए, तो यहाँ पर भी y की वैल्यू कितनी हो गई, -3 से 3, और y आपका नेगेटिव हो नहीं सकता क्योंकि एक्स स्क्वायर क्या है आपका पॉजिटिव है। तो क्या आंसर हो सकता है, -3 और 3 के बीच में 0 से लेकर 3 ही हो सकता है इसका रेंज। y इज ग्रेटर इक्वल टू 0, नेगेटिव नहीं हो सकता ये। ओके, सो रेंज विल बी 3 to 0। तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज 0 to 3, डोमेन -3 से 3। जो भी वैल्यू अब आप यहाँ पर ये रखेंगे यहाँ पर, तो उसका आंसर केवल 0 से लेकर 3 के बीच में ही आएगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ द रेंज। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 we have done up 2.2. Now after this we have question number 4 is easy, 3 and 4 are easy, or we rather will discuss after this. So question number 3. Now question number 3 is easy. A function is given 2x minus 5 and you have to find f0, f minus 3 like this you have to find. तो easy है, simply x की वैल्यू रिप्लेस करनी है। In question number 4, fourth part I am taking, सब में शुरू में तो डोमेन दे रखा है, रेंज निकालनी है, मीन सी की वैल्यू दे रखी है, टी सी निकालना है। तो जो शुरू के 3 parts आर जस्ट सेम एज डोमेन इज गिवन, रेंज यू हैव टू फाइंड। नाउ इन द फोर्थ पार्ट इट्स रेंज इज गिवन, मतलब द वैल्यू ऑफ टी सी इज गिवन, एफ एक्स की जगह टी सी दे रखा है, तो डोमेन यहाँ पर सी है, रेंज यहाँ पर टी है। तो रेंज आपको गिवन है, सी यू हैव टू फाइंड। तो पुट द फॉर्मूला फॉर द टी सी इज गिवन, टी सी इज गिवन एज 9c/5 + 32। तो यहाँ से आप सी निकाल सकते हैं, जो भी आंसर आएगा। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ दिस एक्सरसाइज। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ये अच्छा क्वेश्चन है, केवल यहाँ पर आपको यू हैव टू फाइंड द रेंज, आपको रेंज पता करना है। नाउ यू हैव टू फाइंड द रेंज। नाउ सी द क्वेश्चन, रेंज किसका पता करना है आपको, 2 - 3x का पता करना है आपको रेंज, दिस यू हैव टू फाइंड, इसका रेंज पता करना है। एंड गिवन दैट डोमेन इज ग्रेटर देन 0, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 दे रखा है, इसका मतलब ये हो गया डोमेन आपका पॉजिटिव नंबर है। एंड यू हैव टू फाइंड द रेंज ऑफ दिस, इसका रेंज आपको पता करना है। तो व्हाट कैन यू डू, नाउ इट इज गिवन x इज ग्रेटर देन 0, और क्योंकि यहाँ पर x नेगेटिव है तो x को राइट हैंड साइड, 0 को लेफ्ट में ले जाइए ताकि -x हो जाए, क्योंकि हमारे यहाँ पर x की वैल्यू नेगेटिव है। नाउ द x इज मल्टीप्लाइड बाय 3, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 3, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर लीजिए। नाउ 2 इज एडेड टू -3x, तो ऐड 2 ऑन बोथ साइड, यहाँ पर भी 2 ऐड करिए, यहाँ पर भी 2 ऐड करिए। तो यहाँ पर क्या आ गया, दिस इज 2 - 3x, जो कि सेम है, इसकी वैल्यू पता करनी थी, और इसकी वैल्यू कितनी आई, लेस देन 2। सो द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज लेस देन 2, और यही रेंज होता है कि इस फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है x रखने पर, तो दैट विल बी द रेंज। सो द रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज लेस देन 2। तो लेस देन 2 का मतलब 2 के लेफ्ट में, लेस है तो ओपन इंटरवल, इन्फिनिटी में ओपन इंटरवल लगता ही है। सो दिस इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। Now in question number 5, second part, it is given that x is a real number and you have to find the range of x square plus 2. See in your books, x square plus 2 की range पता करनी है। Now we know that x square is always greater than equal to 0. x real number, तो x square हमेशा 0 या उससे ज़्यादा आएगा। x square plus 2 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो +2 you add both side, दोनों साइड 2 ऐड कर लीजिए, add 2 on both sides। तो क्या आ गई x square plus 2 की वैल्यू, ग्रेटर एंड इक्वल टू 2 या उससे ज़्यादा, मतलब इन्फिनिटी तक। सो दिस इज द रेंज ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस, वैसे भी आप वैसे ही ओवरली पता कर सकते हैं भाई, एक्स स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव, 0 ही हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, तो 0 + 2 2, तो ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू कितनी होगी इसकी, तो सॉरी कम से कम वैल्यू कितनी होगी 2, या उससे ज़्यादा, एक्स इंक्रीज होगा तो 2 से ज़्यादा होता चला जाएगा। सो दिस इज द रेंज ऑफ दिस।
नाउ इन थर्ड पार्ट एफ एक्स इक्वल टू एक्स, दिस इज नोन एज द आइडेंटिटी फंक्शन. जो डोमेन है वही रेंज है. तो डोमेन क्या दे रखा है इसका, रियल नंबर, तो रेंज भी रियल नंबर ही आ जाए, क्योंकि हम एफ एक्स को वाई मान लें और एफ एक्स एक्स है, तो एक्स और वाई इक्वल हो गए. एक्स क्या है, रियल, एक्स इज रियल, तो वाई भी रियल, तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज आर, और रियल उसका रेंज भी इसका कितना आ जाएगा, रियल नंबर आ जाएगा. सो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कंसेप्ट इज ऑफ दैट ऑफ रेंज और डोमेन. अदरवाइज द रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ दिस exercise is somewhat easy. Now I'll do the miscellaneous exercise in the next lecture. Thank you.